हेलो थर्ड क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ डू यू? या आई नो वेरी वेल यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ एंजॉय विथ योर पेरेंट्स एट योर होम. I know very well. So students, welcome back to the video classes at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhatti from Little Angel School, and as you know that I am your computer teacher. So students, make sure that you have your computer textbook and your notebook with you with all time while attending the class. Every day you will be attended the computer video classes and learn about some topic which I covered in video classes. Okay. So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. Yes. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes. I hope you all are ready. Yes. So students, let's get start. Today we are going to cover the day 3 of your revision chapter number 1. Okay, chapter number 1 की revision का आज हम day 3 cover करेंगे because हमारा chapter फर्स्ट का revision start हो चुका है. Yes or no? Yes. So let's start with the revision of chapter number first. Okay. Now student, this is your chapter number first name, that is the introduction to a computer, in which we already covered some topics in which some introduction of computer are there and how your computer works on. Okay, and also what parts are used, what something like these all information about the computer we discussed about the computer, introduction to computer in this वीडियो. गेट इट? आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर का कुछ पार्ट रिवाइज करेंगे. क्लियर? इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी कवर्ड द सम introductions about the computer and also covered how your computer works on. Okay, in which IPO cycle are covered. Okay, now in your chapter number first, your computer textbook has been covered some topics. Okay, and these topics are computer is smart machine, working of a computer, features of a computer, limitation of a computer, types of a computer and computers in other machines. Okay, so students, we already covered about the computer is smart machine and working of a computer in the previous video. Okay students, now in this video we cover the features of a computer and limitation of a computer. Okay students, हम आपकी पहले वीडियो में कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होता है, कैसे होता है, और कंप्यूटर की वर्किंग की हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स ऑन, ये सब हम रिवाइज कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो वी हैव टू रिवाइज इन दिस वीडियो दैट इज द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर. So let's start with the first topic, today topic, that is the features of a computer. So students, today topic is features of a computer. Okay, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ऐसा क्या फीचर्स उसमें ऐड हैं जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे वो बहुत हमारे लिए जो बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिशियल होंगे. ओके, तो उन फीचर्स को हम ध्यान में रखते हुए ही अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं. एज यू नो डैट ना, कि अगर किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे मोर बेनिफिट मिलते हैं तभी हम उसको यूज़ करते हैं, बट हर एक चीज़ की अगर हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, ये आप सब जानते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड द लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर. तो फर्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. हाउ मेनी फीचर्स आर देयर? ओके, सो let's come. So a computer has many features which make it so special. Okay,
कंप्यूटर के अंदर बहुत फीचर्स होते हैं। कंप्यूटर अपने आप में इतने फीचर्स रखता है कि वो इतना स्पेशल होता है कि हम बोलते हैं कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल मशीन, कंप्यूटर इज़ वेरी स्मार्ट मशीन। क्यों बोलते हैं? तो दे इट हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फीचर्स। स्पीड, फर्स्ट फीचर्स इज स्पीड। It can work very fast. It has a very high speed. हम वेरी फर्स्ट क्लास से ये पढ़ते जा रहे हैं कंप्यूटर वर्क्स ऑन वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स ऑन वेरी हाई स्पीड, बट विच टाइप्स ऑफ स्पीड? इट वर्क विद इन ए नैनो सेकेंड, नॉट ए सेकेंड, विद इन ए नैनो सेकेंड। इसकी जो स्पीड्स होती हैं वो नैनो सेकेंड्स पर काउंट होती है, जो कि सेकेंड से भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। क्लियर है? So we can say that the speed is very high, so it can work very fast. अगर किसी की स्पीड फास्ट होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका काम भी फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक ए पार्ट इन द रनिंग कॉम्पिटिशन, ओके, अगर आप रनिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो इफ़ यू हैव हाई स्पीड देन यू कैन विन। ठीक है, अगर आपकी हाई स्पीड है तो आप जीत सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड है तो आप फास्ट रन करेंगे। येस और नो? यस। तो आप उसको जीत सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस कंप्यूटर हैव वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर हैज़ ए वेरी हाई स्पीड so that it can work very fast. Okay, so this one is the first features. Now the second feature says accuracy. It is an accurate machine. Why it is an accurate machine? Anyone tell me? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों accurate machine है? इसे क्यों हम accurate बोलते हैं? क्योंकि it can do some calculation without making any mistakes. Until unless जब तक यूज़र कोई इनकरेक्ट डेटा उसको नहीं एंटर कराता। इफ़ यू वांट टू डू सम टू नंबर्स, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू सम टू नंबर्स लाइक 5 + 10, ओके, टू नंबर्स आपने एडिशन करना है, ऐड करना, सम करना है। Then if you enter these two numbers correctly and if you give the correct instruction to the computer, then computer always give the accurate result, because computer is a man made machine. computer अपने आप से कुछ नहीं सोचता है, computer यूज़र की थिंकिंग पर वर्क करता है। तो यूज़र ने अगर उसको करेक्ट डेटा एंटर कराया है तो करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर उसको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो वी कैन से डैट इट इज़ एन एक्यूरेट मशीन, इट कैन डू कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। However, a computer gives incorrect result when incorrect input is failed. Clear? Now next is memory. It's called memory. You know that everyone has memory. You know that. Okay. Huge memory. Human also has memory. What the human's memory? Yes, human memory, their brain. Okay, human का जो memory है उसका brain है। तो whatever जो भी आप करते हैं आपका वो कहाँ जाके स्टोर होता है? सपोज अगर आई गिव द होमवर्क, देन बेटा जी यू हैव टू लर्न अबाउट दी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप लर्न कर लेंगे। तो वो लर्न तो कर लिया आपने, लेकिन वो आपका कहाँ जाके स्टोर हुआ? आपके ब्रेन में। तो योर ब्रेन इज योर मेमोरी। ओके, सो लाइक दिस कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मेमोरी. It can store huge amount of data and information in its storage space, which is called memory. Storage space of computer is called the memory, जहाँ पर आप अपने डेटा को सेव करके रखते हैं। ठीक है, जस्ट फर्दर आप उसको रिट्राइव कर सकें। It has a hard disk that store data and information. Get it my point? Okay, this is called the memory. Now next is diligence. What does it mean? आपने diligence सुना है? क्या आपने diligence सुना है?
आपने स्पीड सुना तो आपके माइंड में आ गया, यस स्पीड की बात हो रही है, डेट मीन्स फास्ट स्पीड की बात हो रही है, यस एक्यूरेसी की बात हो रही है, डेट मीन्स रिजल्ट की बात हो रही है, करेक्ट और इनकरेक्ट की। मेमोरी की बात हो रही है, डेट मीन्स स्टोरेज की बात हो रही है। बट व्हाट डज इट मीन डिलीजेंस? सुना है डिलीजेंस के बारे में? ठीक है, चलिए चलते इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। जो कंप्यूटर है कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, काम करता रहता है, वर्क करता रहता है कंटिन्यूसली लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है, लेकिन वो टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप और मैं अगर कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम काम करते रहते हैं, लॉन्ग आवर्स तक काम करेंगे, तो एक टाइम आता है कि यस वी नीड सम रेस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग टायर्ड, ओके। बट कंप्यूटर डज नॉट फील द टायर्ड, ठीक है। सो इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। The speed and accuracy level of computer remains the same even after it worked for many hours। जो स्पीड होती है और एक्यूरेसी रहती है वो हमेशा सेम ही रहती है, कितने भी लंबे पीरियड तक वो टाइम करते हैं, वर्क करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मशीन टूडे। इसको हम मोस्ट रिलायबल मशीन भी बोलते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। तो डिलीजेंस। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स perform multiple tasks at the same time with same speed and same accuracy, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैं वर्सेटाइल हूँ बिकॉज आई कैन लिसन टू म्यूजिक एज वेल एज आई कैन राइट द लेटर्स, ओके। like that computer also have versatility features because it can perform various types of jobs at the same time with the same speed and accuracy. For example, we can play game, listen to music and draw pictures at the same time on a computer। एक ही टाइम पर हम गेम भी खेल सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं with the help of computer, okay। So we can say that computer has the versatility features। Get it my point? So these are the features of computer, these makes computer so special, okay। So last feature is reliability। this features is very interesting features because in this feature computer never leaves a work half done and always complete their work, okay। with the features of diligence and the features of reliability we can say that computer is one of the most reliable machine because computer does not getting tired, without getting tired computer continuously work and computer never leaves their work half done and always complete their work, okay। so these are the features which makes the computer is so special। computer is a smart machine, we can say that with these features computer is a smart machine। हम इन features के साथ ये बोल सकते हैं कि yes computer एक स्मार्ट मशीन है, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वीडियो। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कोई भी अगर हमने चीज़ यूज़ करी है तो अगर उसके एडवांटेजेस बहुत हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या लिमिटेशंस होती हैं? लेट्स कम विद द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर हैज़ मैनी लिमिटेशन। अगर कंप्यूटर्स में एडवांटेजेस हैं एंड फीचर्स हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर लिमिटेशंस भी हैं। क्लियर है? क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं हम। इट डज नॉट हैव फीलिंग, इट नेवर फील्स हैप्पी, बोर्ड एंड टायर्ड। इसकी कोई अपनी फीलिंग नहीं होती है, ये कोई फीलिंग नहीं रखता है, ठीक है। मैंने बताया ना ये कभी थकता नहीं है, कभी भी अपने काम को बीच में नहीं रोकता है थक कर, ये कभी भी खुश नहीं होता है, कभी बोर नहीं होता है, कभी सैड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हम देखकर बोल सकते हैं कि इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स लाइक sad feeling, like happy feelings, bored feelings and tired feelings. It does not have any feelings. It never feels happy, bored and tired like this, okay।
जैसे कि ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन कुछ टाइम पीरियड के बाद हैप्पी होना स्टार्ट हो जाते हैं, या अपने आप ही कुछ बात को लेके सैड हो जाते हैं, या फिर बोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर लंबे टाइम पीरियड तक काम करते करते वो थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट कैन नॉट लर्न ऑन इट्स ओन। ओके, its knowledge and working capability are limited to the program installed on it। जो भी इसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं उसकी कैपेबिलिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी और उसकी नॉलेज की लिमिटेड पर ही वर्क करता है ये। ठीक है, इसकी कोई भी अपनी लर्निंग पावर नहीं होती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ये अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर यूज़र ने बोला है मुझे a+b करना है, डेट मीन्स 4+5 करना है, देन वो 4+5 ही आपको रिजल्ट देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपने 4+5 उसमें एंटर कराया और उसने दे दिया 7+8। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, इट वर्क एज पर एज द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द यूज़र। ओके, it cannot take decision on its own, it work as per the given instructions। जो यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी उसी इंस्ट्रक्शन पर वो वर्क करता है, वो कभी भी अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर केयर। वो अपनी केयर के लिए हम पर डिपेंड होता है, डेट मीन्स ह्यूमन पर डिपेंड होता है, जो कंप्यूटर्स को रन करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। ठीक है, वो अपनी केयर खुद से नहीं कर सकता, लेकिन जो ह्यूमन होता है वो अपनी केयर खुद से कर सकता है। अगर ह्यूमन को भूख लगी है, प्यास लगी है, या फिर उसको केयर करना है, या उसको कोई डिसीज़ है, तो वो अपनी केयर खुद से कर सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर मशीन है वो अपनी केयर खुद से नहीं करेगा, वो डिपेंडेंट किस पर है? वो हम पर, ह्यूमन पर डिपेंड है। क्लियर है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर केयर। नेक्स्ट इज लास्ट लिमिटेशन इज इट कैन नॉट थिंक, इट वर्क ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू इट। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं ये उसी पर ही वर्क करता है, इसकी अपनी कोई थिंकिंग पावर नहीं होती, अपने आप से नहीं सोच सकता। जैसे डिसीजन लेने की बात हुई ना, यहाँ पर यही बात है, इट कैन नॉट थिंक, इट वर्क्स ऑन द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट। This is all about the limitation of a computer. Okay, so student, this is enough for today video, in which we revised two topic, features of computer and the limitation of computer. Clear? Now it's time to homework. You have to learn about the features of computer and limitation of computer. Got it? Thank you. This is smile for you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Bye bye.